Good morning, students. Welcome to the second audiovisual class of second chapter of macroeconomics. I am your Sanjeeb sir. Well, let us start. Today we will study the concept and components of investment. So, what do you mean by investment? Investment means the increase in the available stock of capital in an economy in an accounting year is called investment. तो एक इकोनॉमी में जो अवेलेबल स्टॉक ऑफ कैपिटल है उसमें जो चेंजेस होता है, जितना बढ़ता है, दैट इज़ नोन एज योर इन्वेस्टमेंट. एंड इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन. नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट एंड gross investment and net investment. So let us start from the first, the fixed investment. Fixed investment means it refers to the increase in fixed assets of producers in an accounting year. And as you know, fixed assets of producer means your plant and machineries. तो plant and machineries में जो changes होता है, that is known your fixed investment. On the other hand, inventory investment means the change in the stock of unsold finished goods, the semi-finished goods in the process of production and raw material. As we know, if a producer produces goods and services and some output remains unsold, then that unsold output will be considered as your stock. Again, there will be certain commodities which are semi-finished in nature, but that means they are not totally finished. They have not yet crossed the boundary of production. And lastly, there must be certain raw materials. They are yet to be used. So the change in these three things is known as your inventory investment. This investment is also known as change in stock. This inventory investment is again categorized as desired inventory stock and undesired inventory stock. Desired inventory stock means planned inventory stock. Desired means planned and undesired means unplanned. So desired inventory stock means this stock is maintained by the producers to meet the future demand. So as producers, they maintain certain stock of their output in order to meet the need at future time. But if the एक्चुअल डिमांड टर्न्स आउट टू बी लोअर देन एक्सपेक्टेड डिमांड, मतलब एक प्रोड्यूसर जो एक्सपेक्ट किया है कि इतना सामान डिमांड हो सकता है, लेकिन एक्चुअली में अगर उससे कम डिमांड होता है तो ऑब्वियसली देयर विल बी सर्टेन आउटपुट विच विल नॉट बी सोल्ड. सो दैट अनसोल्ड आउटपुट विल बी कंसिडर्ड एज योर अनडिजायर्ड इन्वेंटरी स्टॉक. ओके, नाउ लेट अस मूव टू योर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट. Gross investment means increase in the available stock of capital in the economy, inclusive of depreciation. From this to this, increase in the available stock of capital in the economy is known as your investment. When this investment is inclusive of depreciation, then it is known as your gross investment. Okay, when investment is inclusive of depreciation, then it is known as gross investment. And when this investment is exclusive of depreciation, I mean to say when depreciation is excluded from investment, then this is known as your net investment. Okay, so this one is gross investment, this one is net investment. So what is the relationship between your gross investment and net investment? So gross investment means net investment inclusive of depreciation. Inclusive means plus. So net investment plus depreciation is equal to gross investment, and net investment is equal to gross investment exclusive of depreciation, मतलब minus depreciation. So there is a term depreciation. So you might be studying this term in your accountancy paper. So what can be the definition of depreciation? Depreciation means fall in the value of fixed assets. Fall in the value of fixed assets. Fixed asset means plant and machineries. Due to these three reasons. First one is normal wear and tear. Second one, accidental damage. And third one,
expected obsolescence. Obsolescence means outdated. So when the value of fixed assets fall due to normal wear and tear, accidental damage and expected obsolescence, then it is known as depreciation. Okay, so a question comes in your exam, a difference, what are the differences between your depreciation and capital loss? Remember, depreciation is also known as consumption of fixed capital. Okay, depreciation is also known as consumption of fixed capital. Okay, and this one is your capital loss. So we are going to study the difference between depreciation and capital loss. So first point is loss in the value of fixed assets while दे आर कॉन्टीन्यूसली यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। मतलब जब भी कोई सामान प्रोडक्शन प्रोसेस में हो और उसका वैल्यू कम होता जाता हो तो उसको कहा जाता है डेप्रिसिएशन। ओके, सो दीज कमोडिटीज मस्ट बी इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, बट व्हेन द लॉस इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स व्हाइल दीज आर नॉट इन यूज़, मतलब कि जब सामान को आप यूज़ नहीं कर रहे हो फिर भी उसमें लॉस होगा तो उसे कहा जाता है आपका कैपिटल लॉस। ओके, नाउ सेकंड वन, डेप्रिसिएशन ऑकर्स ड्यू टू, रिमेंबर 3 पॉइंट्स, फर्स्ट वन इज नॉर्मल वेयर एंड टियर, सेकंड वन एक्सीडेंटल डैमेज एंड थर्ड वन एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। ओके, नॉर्मल वेयर एंड टियर, एक्सीडेंटल डैमेज एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। जब ये तीनों चीज़ों की वजह से कोई भी फिक्स्ड एसेट का वैल्यू कम होता है तो उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। कैपिटल लॉस ऑकर्स ड्यू टू, ओके, कैपिटल लॉस ऑकर्स ड्यू टू 2 things, one is natural calamities. Capital loss occurs due to 2 things. First one is natural calamities like earthquake, flood, famine, etc. And second one is your fall in the market value of assets during economic recession. इकोनॉमिक रिसेशन के वजह से अगर फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू कम होता है तो उसको कैपिटल लॉस कहते हैं। ओके, इकोनॉमिक रिसेशन के वजह से या नेचुरल कैलेमिटी की वजह से अगर एसेट्स का वैल्यू कम हो जाता है तो उसको कैपिटल लॉस कहते हैं। ठीक है, लेकिन नॉर्मल वेयर एंड टियर, एक्सीडेंटल डैमेज या एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस की वजह से अगर वैल्यू कम होता है तो उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं या तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। नाउ द लास्ट डिफरेंस इज इट इज़ मैनेज्ड थ्रू डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। जब आप एक प्रोड्यूसर हो और आपको पता है कि आपका जो फिक्स्ड एसेट है उस समय के साथ डेप्रिशिएट करेगा, आपको पता है ये चीज़, इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड। तो अगर कोई चीज़ एक्सपेक्टेड है तो आप उसको मैनेज करने के लिए कुछ तो व्यवस्था करोगे, तो वो क्या चीज़ है? इट इज़ मैनेज्ड थ्रू डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। मतलब जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो लोग पहले से एक फ़ंड बना के रखते हैं और उसमें हर साल कुछ पैसा डालते जाते हैं, और जैसे ही वो मशीन कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है तो उसके जगह पे एक नया मशीन फिर से परचेज कर लेते हैं बाय यूजिंग दैट डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। ऑन द अदर हैंड कैपिटल लॉस जो है वो नेचुरल कैलेमिटी से होता है कि इकोनॉमिक रिसेशन से होता है, और ये चीज़ अनएक्सपेक्टेड होता है। तो जो चीज़ अनएक्सपेक्टेड है उस तरह का लॉस को आप कैसे मैनेज करोगे? उस तरह का जो लॉस है उसको मैनेज करने के लिए इंश्योरेंस किया जाता है। सो कैपिटल लॉस इज मैनेज्ड थ्रू इंश्योरेंस। ओके, डेप्रिसिएशन इज मैनेज्ड थ्रू डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड while capital loss is managed through insurance. Okay, now the last one, the difference between stock and flow. Sometimes the question asks difference between stock variable and flow variable. So any quantity which is measured at a particular point of time, कोई भी क्वांटिटी अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मेजर होता है तो उसको कहा जाता है आपका स्टॉक वेरिएबल। लेकिन अगर कोई क्वांटिटी एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में मेजर होता है, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, तो उसे कहा जाता है आपका फ्लो वेरिएबल। ओके, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर होगा तो स्टॉक वेरिएबल, और पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम मेजर होगा तो फ्लो वेरिएबल। ओके, सेकेंड वन, दिस स्टॉक वेरिएबल इज नॉट टाइम डायमेंशनल। टाइम डायमेंशनल मतलब इसमें कोई टाइम गैप नहीं होता है, एक पर्टिकुलर टाइम ही आपको पूछा जाएगा।
तो इसमें कोई टाइम गैप नहीं है, मतलब इट इज़ नॉट टाइम डायमेंशनल। ऑन द अदर हैंड फ्लो वेरिएबल इज टाइम डायमेंशनल, मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम आपको दिया जाएगा, ठीक है। जैसे 1 अप्रैल से 31 मार्च पीरियड ऑफ टाइम हो गया, तो ये होगा टाइम डायमेंशनल, ठीक है। लेकिन 20 तारीख दोपहर 12 बजे तो एक फिक्स टाइम हो गया, तो ये हो गया आपका नॉट टाइम डायमेंशनल, ये हो गया स्टॉक वे, ठीक है। नाउ स्टॉक इम्पैक्ट्स फ्लो, जो स्टॉक है वो फ्लो को इम्पैक्ट करता है, कैसे? ग्रेटर द स्टॉक ऑफ कैपिटल ग्रेटर इज द फ्लो ऑफ गुड्स। जितना भी ज़्यादा कैपिटल स्टॉक हमारे देश में होगा उतना ही ज़्यादा सामान प्रोड्यूस होगा, इसीलिए ग्रेटर द स्टॉक ऑफ कैपिटल ग्रेटर विल बी द फ्लो ऑफ गुड्स। ऑन द अदर हैंड फ्लो इम्पैक्ट स्टॉक, फ्लो जो है वो भी स्टॉक को इम्पैक्ट करता है, कैसे? ग्रेटर द फ्लो ऑफ इनकम ग्रेटर इज द स्टॉक ऑफ वेल्थ विद द पीपल। लोगों का इनकम जितना ज़्यादा होगा उनका एक्सपेंडिचर भी उतना ही ज़्यादा होगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर उतना ज़्यादा होगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जितना ज़्यादा होगा इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट भी उतना ज़्यादा होगा, इन्वेस्टमेंट जितना ज़्यादा होगा लोगों के पास उतना ही ज़्यादा स्टॉक ऑफ वेल्थ रहेगा, ठीक है। ओके, इस तरह से फ्लो जो है वो स्टॉक को इम्पैक्ट करता है और जो स्टॉक है वो फ्लो को इम्पैक्ट करता है। नाउ द लास्ट वन, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ स्टॉक वेरिएबल। स्टॉक वेरिएबल में आता है आपका वेल्थ, एक पर्टिकुलर टाइम में मेजर होगा, ये कैपिटल एक पर्टिकुलर टाइम में मेजर होगा, बैंक डिपॉजिट एक पर्टिकुलर टाइम में मेजर होता है, ओके। वेल्थ एक पर्टिकुलर टाइम मेजर होगा, कैपिटल एक पर्टिकुलर टाइम मेजर होगा, बैंक डिपॉजिट एक पर्टिकुलर टाइम मेजर होगा, इसलिए ये सब हो गया आपका स्टॉक वेरिएबल। ऑन द अदर हैंड इनकम, कैपिटल फॉर्मेशन, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, ये सब एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम मेजर होता है, इसीलिए इसे कहते हैं फ्लो वेरिएबल, ठीक है ना। रिमेंबर, कैपिटल हो गया स्टॉक, कैपिटल फॉर्मेशन हो गया फ्लो, बैंक डिपॉजिट स्टॉक, और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है वो फ्लो वेरिएबल आता है, मतलब इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट होता है आपका फ्लो वेरिएबल, ओके। सो दिस मच टुडे, थैंक यू वेरी मच, स्टे होम, स्टे सेफ।